Hello everyone, this is our English class and today we will continue with our chapter 2 Bully. Yesterday we studied about how a little girl was bullied by her siblings and her parents also used to tell her that she's ugly and she has no intelligence because she fell from that cot at the age of 10 months, and that's why she was unable to do regular things and she used to stammer. And now all of her sisters are going to marry and she's not able to marry according to her mother. And her mother suggested that you should send Boli to school, as Tehsildar ordered Bholi's father to set an example in front of villagers, because Bholi's father was a revenue officer and there was a school open for girls only, a government school open for girls. And Tehsildar inaugurated that school, and then he suggested to Bholi's father that you should send your uh, daughters to this school to set an example in front of everyone, all the villagers. So in spite of sending other daughters, both parents of Bholi discussed that we should send Bholi to school, as she's not going to marry because she's not a normal girl. She doesn't have any intelligence or basic manners, and she looks ugly because of that smallpox. At the age of 5, she had smallpox, so that's why there were marks on her whole body. So now Bholi's father is trying to uh, take her to school, and she is unable to clear this uh, scenario in her mind. So now we'll start from this para. कल हमने पढ़ा था कि किस तरीके से भोली के पिताजी रामलाल जो हैं उसको लेकर के जा रहे थे, और भोली को लग रहा था कि कुछ दिनों पहले जो बुजुर्ग गाय थी जैसे उसको निकाल करके बेच दिया गया था, शायद इसको भी बेचा जा रहा है, और इसीलिए वो अपनी हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है अपने पिताजी के हाथ से। वो अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है एक तरीके से। What's the matter with you, you fool? shouted रामलाल। अब जो है रामलाल यानी कि भोली के पिताजी कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है तुम्हारे साथ में, तुम बेवकूफ लड़की। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं सिर्फ तुमको स्कूल लेकर के जा रहा हूँ। Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will teachers and other school girls think of us when they see her? अब ये अपनी वाइफ को कहते हैं, यानी कि भोली की माता जी को कहते हैं कि इसको कुछ अच्छे डिसेंट कपड़े पहनने दो, नहीं तो स्कूल के टीचर्स और बाकी लड़कियां हमारे बारे में क्या सोचेंगे। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, नए कपड़े कभी भी भोली के लिए नहीं लिए जाते थे या बनाए जाते थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, हमेशा पुराने कपड़े जो होते थे उसकी टीचर्स के, वो ही उसको दिए जाते थे। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, कोई भी परवाह नहीं करता था कि उसके कपड़े फट रहे हैं तो उसको सिल दें, या उसके कपड़े गंदे हो गए हैं तो उसको धो दें। But today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted चंपा। आज बहुत लकी दिन था भोली के लिए, क्योंकि आज उसको एक साफ सुथरे कपड़े मिल रहे थे जो काफ़ी धुलाई के बाद में छोटी हो गई थी, और उसकी उससे बड़ी बहन चंपा को वो फिट नहीं होती थी, तो वो कपड़े आज भोली को दिए जा रहे थे। शी वॉज इवन bathed and oiled was rubbed into her dry and matted hair, आज उसको नहलाया गया था और उसके सर में तेल भी लगाया गया था, उसके सूखे बालों के अंदर तेल भी डाला गया था। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home, उसको तभी विश्वास होने लगा कि उसको घर से कोई अच्छी जगह पे लेके जाया जा रहा है, क्योंकि उसके साथ में बुरा व्यवहार किया जाता था, उसको कपड़े नहीं दिए जाते थे साफ, उसको नहलाया नहीं जाता था। तो ये सारी चीज़ें जब उसके साथ में हुई कि उसको नहलाया गया, उसको नए कपड़े दिए गए, और तो और उसके सूखे बालों में तेल भी डाला गया, तो उसको एहसास हुआ इस चीज़ का कि मुझे बेचने ना ले जा कर के उस गाय की तरह मुझे कहीं सी अच्छी जगह लेके जाया जा रहा है जो घर से मेरे बेटर है, क्योंकि घर में तो उसको गंदे तरीके से रखते थे, इसलिए उसको जब साफ सफाई करी उसकी, उसको एहसास हुआ इस चीज़ का।
When they reached the school, the children were already in their classroom. जब रामलाल और उसकी बेटी भोली स्कूल पहुंचे तो बच्चे पहले से ही क्लासरूम में बैठे हुए थे. रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेडमिस्ट्रेस. रामलाल ने अपनी बेटी को किसको सौंपा? जो वहाँ की हेडमिस्ट्रेस थी, प्रिंसिपल थी, उनको दिया. Left alone, the poor girl looked about her with fear laden eyes. अब जब सब अकेला छोड़ दिया था उसको, तो वो बच्ची जो है डरी हुई सी, सहमी सी, अपनी आंखों से उसको देखती है, टीचर को. There were several rooms, and each room girls like her squatted on mats, reading from books or writing on slates. वहाँ पे कई सारे कमरे थे और हर रूम में उसी की जैसी बच्चियां पढ़ रही थी, जमीन पे बैठ करके, दरी पे बैठ करके, और किताबें पढ़ रही थी और लिख रही थी अपनी स्लेट्स पर. ये सब भोली के लिए बहुत ही नया था, क्योंकि वो तो कभी स्कूल गई नहीं थी, नहीं यहाँ पे उसकी फैमिली में ही ट्रेडिशन था कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए, स्पेशली गर्ल्स को स्कूल भेजा जाए. बॉयज़ को तो फिर भेज देते थे, लेकिन गर्ल्स को नहीं भेजते थे. और इसको भी इसीलिए भेजा गया था क्योंकि इससे कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि ये बदसूरत थी इसकी माँ के अकॉर्डिंग, और अनपढ़ तो थी, क्योंकि नॉलेज थी नहीं बेसिक, और थोड़ा सा स्पेशल चाइल्ड थी, तो उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी पेरेंट्स को, इसीलिए. और तहसीलदार ने बोला था कि एग्जाम्पल सेट करना है एक, अगर आप अपनी बेटियों को भेजेंगे, तो इसके पेरेंट्स ने इसको भेज दिया था. तो ये वहाँ का माहौल अब देख करके थोड़ी सी डरी हुई है, स्कूल का माहौल देख करके. द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स. हेडमिस्ट्रेस ने भोली को कहा कि एक कमरे के कोने में बैठ जाओ. Boli did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. भोली को बिल्कुल भी नहीं पता था कि स्कूल क्या होता है, कि वहाँ पे किस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन वो खुश थी कि उसकी उम्र की कई सारी लड़कियाँ वहाँ पर प्रेजेंट थी. She hoped that one of these girls might become her friends, और उसको उम्मीद थी कि उनमें से ही एक लड़की उसकी दोस्त बन जाएगी. The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. अब जो लेडी टीचर उस क्लास में थी वो कुछ कह रही थी लड़कियों से, लेकिन भोली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. She looked at the pictures on the wall. वो देख रही थी जो दीवारों पे पिक्चर्स टंग रही थी. अक्सर आपने देखा होगा जब कोई नया बच्चा स्कूल में आता है तो वो इतना फेमिलराइज नहीं होता है माहौल के साथ में, और वो चुपचाप बैठा रहता है. यहाँ पे भोली भी चुपचाप ही बैठी हुई है, और वो पूरे एनवायरनमेंट को और सराउंडिंग्स को देख करके समझने की कोशिश कर रही है. कैसे दीवारों पर पिक्चरें लटकी हुई हैं, कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें. The colors fascinated her. The horse was brown, like the horse on which the Tehsildar had come to visit their village. The goat was black, like the goat of their neighbors. The parrot was green, like the parrots she had seen in the mango orchard. The cow was just like their Lakshmi, and suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her. अब बच्ची जो है भोली, वो क्लासरूम में बैठी है, वहाँ पे टंगी हुई पिक्चर्स देख रही है, और उसको बहुत ही अच्छा लग रहा है वो पिक्चर्स देख करके. जैसे घोड़ा भूरे रंग का होता है, सेम उसी तरीके से भूरा जिस पर तहसीलदार बैठ करके आया था, वो भूरा, वो उसके गांव में जब तहसीलदार आया था तो वो भी हॉर्स पे ही आया था. गोट जो है बिल्कुल काली थी, बिल्कुल उसी तरह की काली जैसे इनके पड़ोसी की गोट है. द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड. और पैरट जो तोते की पिक्चर है वो भी उसी तरह का हरा है जैसा इसने आम के बाग में देखा था. द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी. और काउ जो इसकी पुरानी गाय थी जिसको बेच दिया गया लक्ष्मी, बिल्कुल उसी की तरह थी. तो ये पिक्चर्स कमरे में टंगी हुई थी. अचानक ही इसको एहसास होता है कि टीचर इसके पास में खड़ी है और इसकी तरफ देख के मुस्कुरा रही है. व्हाट्स योर नेम लिटिल वन. अब टीचर इससे इसका नाम पूछ रही है कि तुम्हारा नाम क्या है छोटी बच्ची. तो ये बोलती है भो भो भो. शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट. इससे ज़्यादा वो स्टैमर यानी कि हकला नहीं पा रही थी. Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. और वो अपना नाम नहीं बोल पाई पूरा, इसी चक्कर में वो रोने लगती है और इसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं. She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her.
वो रोने लगती है, उसकी आंखों से मतलब बाढ़ सी बहने लगती है आंसुओं की, और वो अपना सर झुका लेती है और कॉर्नर में जहाँ वो बैठी हुई थी वो अपना सर झुका लेती है। ऊपर देखने की बिल्कुल कोशिश नहीं करती, क्योंकि उसको पता है कि बाकी लड़कियां जो हैं, जिनको वो जानती भी नहीं है, वो उस पर अभी भी हंस रही है। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. जब स्कूल बेल बजती है तो गर्ल्स जो है सारी बाहर निकलती हैं क्लासरूम से, लेकिन भोली जो है वो अपना कोना नहीं छोड़ती। उसका सर अभी भी झुका हुआ है और वो अभी भी रो रही है। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। अब टीचर की आवाज़ जो थी बहुत ही सॉफ्ट थी और बहुत ही आराम देने वाली थी, तो वो बोलती है टीचर भोली। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, इट टच्ड हर हार्ट। उसकी भोली की पूरी ज़िंदगी में कभी किसी ने उसको इतने प्यार से नहीं बुलाया था, तो जब वो सुनती है भोली तो उसका दिल को छू जाती है वो आवाज़। गेट अप, सेड द टीचर। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप। अब टीचर बोल रही है उठो, और वो बहुत ही कोई कमांड नहीं दे रही थी टीचर, उसको प्यार से बोल रही थी, तो भोली उठती है। नाउ टेल मी योर नेम, और मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। पूरी बॉडी पे पसीना पसीना हो जाता है भोली के। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर। क्या उसकी वापस से हकलाने वाली जो जबान है, क्या वापस उसको लज्जित करेगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन, हाउ एवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। अब ये जो दयालु औरत है उसके सामने मतलब टीचर जो है उसको अपना नाम बताने के लिए वो एफर्ट लगाती है। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, शी वुड नॉट लाफ एट हर। और उसको एहसास होता है कि इनकी आवाज़ इतनी अच्छी है और ये शायद मुझ पर नहीं हंसेंगी। भ भो भो, शी बिगिन टू स्टैमर। वो हकलाने लगती है। वेल डन, द टीचर एनकरेज्ड हर। टीचर उसको प्रोत्साहन देती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कम ऑन नाउ, द फुल नेम। चलो कोई नहीं, अब पूरा नाम बोलो। तो वो भ भ भो भोली बोल देती है। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। एट लास्ट वो अपना नाम बोल देती है और वो बहुत ही रिलीफ फील करती है। उसको ये बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है कि उसने फाइनली अपना नाम बोल दिया। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। अब टीचर उसको बोलती है कि अपना डर जो है अपने दिल से निकाल दो, और फिर जो है तुम पूरी अच्छी तरीके से बोल पाओगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से एक टीचर जो है वो भोली की हेल्प कर रही है, जबकि इसके पेरेंट्स इसकी हेल्प नहीं कर रहे थे। इसकी इतनी बहनें और इतने भाई थे, उन्होंने इसकी हेल्प नहीं करी। और आज एक स्कूल में जब वो पहले दिन आई है तो वो अपना नाम बोल पा रही है बिना डर के। ये सब किसकी वजह से हुआ है? उसकी टीचर की वजह से हुआ है, क्योंकि टीचर ने उसका मजाक नहीं उड़ाया और उसकी प्रॉब्लम को समझते हुए उसको एनकरेज किया। So that's all for today, students. We'll continue this chapter tomorrow. Have a nice day ahead. God bless you all.